Prabhas, Kriti Sanon, and Saif Ali Khan starrer Adipurush is all over the news, but for reasons that weren't expected of it. The film's VFX and dialogues have been in constant discussion due to poor quality. The film, which opened on a great note, saw a steep decline in figures on day 5. Amid this, Adipurush makers have reduced the film's ticket price to Rs 150. Amid all the flack, Adipurush was reigning high at the box office until Wednesday. The film saw its lowest dip in 5 days. Amid the same, the makers have reduced Adipurush ticket fee to that of Rs 150 to encourage the audience to watch the film. Adipurush has been re-released in Hindi with edited and changed dialogues. The ticket prices would be priced so only on June 22 and June 23, making it affordable for viewers. However, they might have to pay a little extra for the 3D glasses as applicable by the theatres. A new poster with the announcement was also unveiled. In the 4 days of its theatrical run, Adipurush earned over Rs 375 crores worldwide. The makers shared the official collection report on June 20th. The film's collection further dipped on Tuesday, June 20th, and racked Rs just 16 crores in India. On day 5, the film saw a steep dip and mounted Rs 10.7 crore at the domestic box office. This takes the 5 days total collection to Rs 247.8 crores at the domestic box office. Written and directed by Om Roth, Adipurush is a mythological tale based on Valmiki's Ramayana. The film features Prabhas as Lord Ram, Kriti Sanon as Sita, and Saif Ali Khan as Ravan. They play the roles of Ravana, Janki, and Lankesh respectively in the film. Sunny Singh and Devdatta Neg are part of the supporting cast. Adipurush is the most expensive Indian film which has been made on a budget of Rs 500 crore. The film saw multiple postponements and controversies over the course of 2 years. Well, what do you think about this decision? Do let us know in the comment section below. But before that, if you like the information, then don't forget to like, share and subscribe to One India News. हमारे साथ जो सबसे बड़ी चीज थी वो थी संप्रेषणीयता, कम्युनिकेशन, क्योंकि हम ये तो जानते थे कि ये देश राम के मूल्यों पे, राम के सिद्धांतों पे चलने वाला है। यहाँ किसी को राम बताने की जरूरत नहीं है, सब राम जानते हैं। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि जो नई पीढ़ी है, ये नए बच्चे कैप्टन अमेरिका और थॉर और मार्वल और डीसी के यूनिवर्स में पल बढ़ रहे हैं। ये राम की कथाएं नहीं सुनते। और अगर मैं ईमानदारी से कहूं, दिल पे हाथ रख के कहूं, तो कितने बच्चे हैं जो यूट्यूब पे अपने खाली टाइम में लगा के रामानंद सागर जी की रामायण देखते हैं? आप पाएंगे शून्य। नहीं देखते बच्चे। मैं और आप देखते हैं। मुझे आज भी देखनी है। अगर मैं घर जाऊं, मेरे पास आधे घंटे हो तो मैं एक एपिसोड देख डालता हूं बैठ के। लेकिन मेरे 12 साल का बेटा ये नहीं करता है। तो जो लक्ष्य था वो बस इतना ही था कि श्री राम की कहानी, जो इतने बड़े नायक हैं हमारे, उनसे बड़ा नायक क्या कोई हो सकता है? क्या कल्पना भी कर सकते हैं आप उससे बड़ा नायक आने की? वो नायक लोगों तक पहुंचे, ये जाने कि सिर्फ सुपरमैन हवा में नहीं उड़ता था। हमारे बजरंगबली उससे बहुत पहले उड़ते थे, 100 योजन का समुद्र पार कर जाते थे। हमारे बजरंगबली सिर्फ हल्क ऐसा नहीं था कि जो बड़ी बड़ी चीजें मारे और मुक्का और पहाड़ टूट जाएं। हमारे बजरंगबली द्रोणागिरी पर्वत उठा के उड़ जाते थे। ये सब हम लोगों को बताना चाहते थे। इतना सा ही लक्ष्य था कि हम नए हीरोज दे पाएं, असली हीरोज, सनातन के जो हीरोज है, सनातन के नायक हैं, वो हम बच्चों को दे पाएं। ये हमारी यात्रा थी, ये हमारी कोशिश थी। जो लोग विरोध कर रहे हैं वो बोल रहे हैं आपने सिनेमैटिक लिबर्टी के नाम पे जो डायलॉग्स पे जो एतराज कर रहे हैं वो आपने उसको इम्प्रूव नहीं किया, उसके साथ छेड़छाड़ कर दी। देखिए, पहली चीज तो ये कि पहले दिन से जब मैं पहली बार मीडिया के सामने आया था इस फिल्म को लेकर, तब से मैंने एक चीज कही थी कि ये 1 वे ट्रैफिक नहीं है, 2 वे ट्रैफिक है। हम उन फिल्म मेकर्स में हैं जो आपकी बात सुनेंगे। इस देश में और कोई फिल्म निर्माता ये दावा नहीं कर सकता कि उसने कोई भी संशोधन लोगों के कहने पे अपनी फिल्म में किया हो। हम पहले दिन से सुन रहे हैं। वादा किया, हमने सुना। आपने देखा, टीजर आपने देखा था, और टीजर के बाद जब पहला ट्रेलर आया, पहले ट्रेलर पे तो हम सब ने देखा था कि डायलॉग्स पे तो आर्टिकल लिखे गए, बड़े बड़े डायलॉग पे तो बड़ी बड़ी न्यूज चली। जब वो भगवान श्री राम बोलते हैं कि हम अपने जन्म से नहीं, कर्म से छोटे या बड़े होते हैं। जब भगवान श्री राम कहते हैं कि आज मेरे लिए मत लड़ना, उस दिन के लिए लड़ना जब हजारों साल बाद तुम्हारी कहानियां सुनाकर माएं बेटों को बड़ा करेंगी।
उस दिन के लिए लड़ना जब भारतवर्ष की किसी बेटी पर हाथ डालने से पहले दुराचारी तुम्हारा पौरुष याद करके थर्रा उठेगा। उस दिन के लिए लड़ना जब इतिहास में तुम्हारा नाम पढ़कर सम्मान से सर झुक जाएंगे। मर्यादा के लिए लड़ना। लड़ोगे तो आगे बढ़ो और गाड़ दो अहंकार की छाती में विजय का भगवा ध्वज। ये सब डायलॉग्स इसी फिल्म के हैं, मैं कहीं बाहर से नहीं बोल रहा हूं। जब मां सीता अशोक वाटिका में हैं और रावण उनके ऊपर लगातार दबाव बना रहा है कि तुम इस यातना भरे जीवन से मुक्त होने के लिए सोने की लंका में चलो, मेरी पत्नी बन जाओ, मेरी रानी बन जाओ, और वहां मां सीता कहती हैं उसकी आंखों में आंखें डाल के कि रावण, तेरी लंका में अभी इतना सोना नहीं है कि जानकी का प्रेम खरीद सके। ये सब इसी फिल्म का हिस्सा है, ये सब इसी फिल्म के संवाद हैं। तो इन संवादों पर अगर आपने तालियां बजाई, अगर आपको लगा कि मनोज मुंतशिर की लेखनी से निकले ये संवाद आपके राम के चरित्र को और आपकी मां सीता के सतीत्व को सही तरीके से प्रतिपादित कर रहे हैं, सही तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं, तो पहले तो इतने के लिए मेरी प्रशंसा होनी चाहिए कि मैंने बहुत अच्छा किया। फिर जहां आपको यह लगता है कि नहीं भाई, बजरंगबली के 5 संवादों पर पूरी कहानी है, 4-4.5 हजार लाइनें, मैंने गिनी तो नहीं है पर लगभग इतनी लाइनों के संवाद पिक्चर में है, उसमें से अगर 5 पे ऐतराज है आपको, तो ये 5 का ऐतराज मैं शिरोधार्य करता हूं। मैं इतने अहंकार में नहीं हूं, मैं ब्रह्मा नहीं हूं कि मैंने कलम उठाई, लेखनी से जो लिख दिया वही विधि हो गई। अरे बिल्कुल नहीं, मैं राम तत्व को समझने का प्रयास कर रहा हूं, मैं बजरंगबली को समझने का प्रयास कर रहा हूं। मुझे ऐसे दिखे, मुझे लगा बड़ी चंचलता थी उनके अंदर, मुझे लगा वो राम नहीं थे, वो बजरंगबली थे, राम भक्त थे। तो वो ह्यूमर लेके आते हैं राम कथा में, वो उसको बहुत रोचक बनाते हैं। उनके अंदर पर्वतों जैसा बल है, उनके अंदर हजारों अश्वों का वेग है, बल बुद्धि विद्या के देवता हैं। ऐसा नहीं कि उनकी कोई बुद्धि कम है, लेकिन इसके बावजूद जब वो बातें करते हैं, बड़ी सरलता से बात करते हैं, बड़े सहजता से बात करते हैं, बड़ी निश्चलता से बात करते हैं। बालक स्वभाव है उनका। जब आप रामानंद सागर जी की भी रामायण देखें, तो जब वो खड़े हुए हैं रावण के दरबार में और उनसे पूछता है रावण कि तूने ये उत्पात क्यों मचाया, पूरी मेरी वाटिका उजाड़ दी, अशोक वाटिका। तो कहते नहीं, मुझे तो भूख लगी थी और मैं 100 योजन का समुद्र पार करके आया था, भूख लगी थी, मुझे फल दिखे, मैंने खा लिए और फल खाने में टूट टाट गया सब कुछ। ये देख रहे हैं आप, क्या ऐसा भगवान श्री राम बोलेंगे? भगवान श्री राम जो बोलेंगे दार्शनिकता से बोलेंगे। तो मेरी फिल्म में भी आपने सहज बनाया, उसे आज के दौर के हिसाब से बनाया, मतलब जिनकी जन भावना आहत हुई है वो भी आपके अपने हैं। ऐसा नहीं कि जो विरोध करने के लिए तैयार थे, ये तो आपके सपोर्टर होते, उसी में से 10-20% जो लोग विरोध कर रहे हैं, उनकी जन भावना का आदर करते हुए आपकी कंपनी जो प्रोड्यूसर है टी सीरीज, उन्होंने भी एक बयान जारी किया है। शायद आप कुछ बदलाव करने वाले हैं, कोई डायलॉग। वो बयान सबसे पहले मेरी तरफ से आया, आपका ट्वीट जी आया, जी, उसके तो बाद टी सीरीज का भी एक बयान आया जी, इसको सम्मान करते हुए कुछ आप इसमें बदलाव करने वाले हैं? बिल्कुल। 5 डायलॉग पे आपत्ति है, मैं 5 बदल रहा हूं 100%। ये नहीं कि आधा अधूरा। मैं अपने संवादों के पक्ष में अनगिनत तर्क दे सकता हूं, लेकिन मेरे तर्क देने से आपकी पीड़ा कम नहीं होगी। अगर आपको कुछ दुखा है, अगर आप आहत हुए हैं, आपका आहत होना मेरे लिए बड़ी बात है। मेरा अहंकार एक लेखक के तौर पे कि मैंने तो भाई लिख दिया, ये बहुत छोटी बातें हैं। इन छोटी बातों में मैं नहीं फंसता। मैं समझता हूं फिल्म लोगों के लिए बनाई जाती है, लोगों को पसंद आई तो अच्छी बात है, और अगर लोगों को कुछ अंश, कुछ पार्ट नहीं पसंद आया, तो हमारा कर्तव्य है कि हम उसमें परिवर्तन कर पाएं तो करें। कभी कभी संभव नहीं होता, लेकिन मैं इस बात को, ये बहुत अच्छी बात है कि मेरे डायरेक्टर ओम राउत, मेरे प्रोड्यूसर श्री भूषण कुमार, ये एक लॉजिस्टिकल नाइटमेयर है कि जो पिक्चर लगभग 10,000 थिएटर्स में रिलीज हो चुकी हो, अब उसमें कुछ संवाद बदले जाएं। ये फैसला हर कोई नहीं ले सकता, वही ले सकता है जो जनता का सम्मान करता है, जो सनातन का सम्मान करता है। और इसीलिए हम वो डायलॉग्स बदल रहे हैं बहुत जल्द। मुझे लगता है कि लॉजिस्टिकली सब क्लियर होने के बाद अगले 2 से 3 दिनों में ये डायलॉग्स थिएटर में होंगे। Subscribe to One India channel and never miss an update.